Hello, my dear student. I am Professor Harshal Nikam, Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic, Nagpur. Today, we are going to start the last topic of second unit, that is based on Class C power amplifier. So let's start with some outcome. The course outcome for this unit is use BJT as a high power amplifier, and its PO mapping is here. I map the course outcome, that is use BJT as a high power amplifier with its program outcome. So here I map the PO1 at a level 1, PO2 at a level 3, PO3 at a level 3, PO4 at a level 2. Similarly, PO9 is mapped with the 1 level and PO10 is mapped with the 1 level. Here, this PO1 is related to the basic knowledge, PO2 is related to the discipline knowledge, PO3 is related to the experiment and practice, PO4 is related to the engineering tools, and PO9 is related to the communication. Likewise, PO10 is related with the lifelong learning. So this is PO and CO mapping. Now, here I mention some learning outcome for this session. Means after completing this session, you all are able to explain with sketches working principle of class C power amplifier, select relevant power amplifier circuit for given application, compare performance parameter of amplifier, draw class C amplifier circuit and explain, write advantage and disadvantage of class C amplifier. डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर कंप्लीट होने के बाद, ये आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड होने के बाद, आप सभी लोग क्लास सी पावर एम्पलीफायर को एक्सप्लेन कर सकते हो, क्लास सी पावर एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, क्लास सी पावर एम्पलीफायर के परफॉर्मेंस को आप जो हमने प्रीवियस एम्पलीफायर पढ़े लाइक क्लास बी एम्पलीफायर, क्लास ए और क्लास ए बी एम्पलीफायर, उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हो। वैसे ही आप क्लास सी पावर एम्पलीफायर के एडवांटेज डिसएडवांटेज भी लिख सकते हो। Before going to in detail about the class C power amplifier, you must know the operation of class AB power amplifier and operating point of transistor and its region. हम क्लास सी पावर एम्पलीफायर पढ़ने के पहले जो हमने क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर प्रीवियस लेक्चर में देखा, उसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। वैसे ही ट्रांजिस्टर के जो रीजन होते हैं, जैसे कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन और सैचुरेशन रीजन, उन रीजन के बारे में भी आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी पावर एम्पलीफायर होता है उसका क्लासिफिकेशन जो हमने किया था वेरी फर्स्ट लेक्चर में, वो डिपेंडिंग ऑन पोजीशन ऑफ क्यू पॉइंट के आधार पे हमने किया था। तो इसलिए ये नॉलेज आप सभी को होना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू क्लास सी पावर एम्पलीफायर। सी, दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ क्लास सी पावर एम्पलीफायर. This is the circuit diagram of class C power amplifier. Here I use this power transistor, which is NPN transistor. Vin means it is a input supply given to the base terminal of this transistor, and we are taking the output from this collector terminal like V out. V out means it is a output voltage. Here this is the inductor, L means it is a coil,
This is capacitor, means we are connect the tune circuit, means capacitor and inductor अगर हम एक सर्किट में अगर कनेक्ट कर रहे हैं और वो भी पैरेलल में, तो हम उसको ट्यून सर्किट बोल सकते हैं। तो कलेक्टर टर्मिनल जो है ट्रांजिस्टर का, उस कलेक्टर टर्मिनल पे इंस्टेड ऑफ लोड रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पे हमने लोड रेजिस्टेंस के जगह पे क्या कनेक्ट किया है, ट्यून सर्किट। Here I connect RFC to the base terminal of this transistor, यानी ये जो बेस टर्मिनल है, इस बेस टर्मिनल को मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है RFC। RFC का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल, जो कि हम कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सम कंस्ट्रक्शन रिलेटेड पॉइंट अबाउट द क्लास सी पावर एम्पलीफायर। यहाँ पे हमने निगेटिव VBB, यानी ये जो बेस टर्मिनल है, इसलिए हमने यहाँ पे निगेटिव VBB सप्लाई दिया है RFC को, और प्लस VCC सप्लाई जो हमने कलेक्टर टर्मिनल पे दिया है। तो इस सर्किट में हम प्लस VCC और निगेटिव VBB यानी ड्यूअल पोलैरिटी सप्लाई यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास सी पावर एम्पलीफायर। Now we are discussing some important points about the class C power amplifier in next slide. Here I mention some important points about the class C power amplifier. Very first one is class C power amplifier cannot use as a audio amplifier. हम class C power amplifier को ऑडियो एम्पलीफायर के लिए यूज नहीं कर सकते, बिकॉज हियर इन क्लास सी पावर एम्पलीफायर वी आर यूजिंग अ ड्यूअल पोलैरिटी सप्लाई, दैट्स व्हाई इट इज यूज फॉर सम कम्युनिकेशन पर्पस। इट कैन बी यूज फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस। यहाँ पे हमने लिखा ही है कि हम इसको कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज करेंगे, क्योंकि इसमें हम RFC यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल यूज कर रहे हैं। VBB is applied at a base terminal of transistor through RFC। ये हमने प्रीवियस स्लाइड में जहाँ पे हमने सर्किट डायग्राम निकाली थी क्लास से पावर एम्पलीफायर के, तो वहाँ पे हमने देखा ही है कि VBB सप्लाई हम बेस टर्मिनल को कनेक्ट कर रहे हैं थ्रू द RFC, और RFC का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल। ट्रांजिस्टर बायस बिलो द कट ऑफ रीजन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ट्रांजिस्टर बायस बिलो द कट ऑफ रीजन, यानी इसमें जो ट्रांजिस्टर अपन बायस कर रहे हैं, यानी ट्रांजिस्टर को जो बायसिंग कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं बिलो द कट ऑफ रीजन, यानी एक्स एक्सिस जो होती है, उस एक्स एक्सिस के नीचे जो कट ऑफ रीजन है, यानी वो जो पूरा कट ऑफ रीजन होता है एक्स एक्सिस पे, उसके नीचे हम बायस कर रहे हैं। और ये आपको मोर क्लियर होगा इन आवर नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें हम वेवफॉर्म पढ़ने वाले हैं क्लास सी पावर एम्पलीफायर के। तो फिलहाल आपको यही याद रखना है कि क्लास सी पावर एम्पलीफायर में जो ट्रांजिस्टर अपन बायस करेंगे वो बिलो द कट ऑफ रीजन करेंगे। इसकी वजह से देयरफॉर Q पॉइंट इज अल्सो बिलो द कट ऑफ रीजन। ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि क्लास सी पावर एम्पलीफायर में जो Q पॉइंट होता है वो बिलो द कट ऑफ रीजन है, मतलब एक्स एक्सिस के नीचे यहाँ पे Q पॉइंट की पोजीशन है। When transistor is in forward bias, then it will conduct for less than 180 डिग्री। जब ट्रांजिस्टर फॉरवर्ड बायस में होता है, देन वो कंडक्ट होता है लेस देन 180 डिग्री, यानी जो हाफ साइकिल होती है 180 डिग्री यानी हाफ साइकिल, उससे कम साइकिल यहाँ पे कंडक्ट होती है जब ट्रांजिस्टर फॉरवर्ड बायस में होता है तब। बिकॉज अपना जो ट्रांजिस्टर हमने यहाँ पे बायस किया है वो है बिलो द कट ऑफ रीजन, जहाँ पे अपना जो ट्रांजिस्टर यानी Q पॉइंट अगर बिलो द कट ऑफ रीजन है, तो अल्टीमेटली वो 180 डिग्री से लेस कंडक्ट होगा। Here
इट इज़ अ वेवफॉर्म ऑफ क्लास सी पावर एम्पलीफायर। तो यहाँ पे आपको क्लियर होगा, सी दिस इज द VCE, this is the VCE means we are taking here a common emitter configuration, that's why the output voltage is VCE, means voltage present between collector and emitter. This is C means it is a collector and E means it is a emitter, and here I take output current, that means it is a IC। तो IC वर्सेस VCE एक हमने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे निकाली है, और दिस इज द लोड लाइन, और ये जो होती है ये है लोड लाइन। ओके, तो Q की जो पोजीशन है क्लास सी पावर एम्पलीफायर में, Q पॉइंट जो होता है क्लास सी पावर एम्पलीफायर में वो होता है बिलो द कट ऑफ रीजन। देखिए यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ ये है अपनी Q पॉइंट की पोजीशन, और ये है अपनी एक्स एक्सिस के नीचे यानी बिलो, यहाँ पे क्या है कट ऑफ रीजन। तो बिलो द कट ऑफ रीजन, ये पूरा कट ऑफ रीजन है एक्स एक्सिस के थोड़ा ऊपर, और उसके पूरे नीचे मतलब बिलो द कट ऑफ रीजन। तो यहाँ पे अपना क्यू पॉइंट यहाँ पे हमने स्टेबल किया है कौन से पावर एम्पलीफायर में, क्लास सी पावर एम्पलीफायर। इसीलिए जो अपनी साइकिल है ये देखिए हाफ साइकिल, तो ये एक पूरी कंप्लीट हाफ साइकिल मतलब 180 डिग्री, बट उससे भी कम साइकिल यहाँ पे कंडक्ट हो रही, यहाँ पे भी मिल रही और अपने को यहाँ पे भी मिल रही। दिस इज अवर VC मैक्स एंड दिस इज अवर IB मैक्स एंड दिस इज अवर IC मैक्स, मतलब मैक्सिमम कलेक्टर करंट, मैक्सिमम कलेक्टर एमिटर वोल्टेज एंड मैक्सिमम बेस करंट। तो ये जो साइकिल से आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि 180 डिग्री से भी कम साइकिल यहाँ पे कंडक्ट हो रही है। किस वजह से? क्योंकि हमने बिलो द एक्स एक्सिस यहाँ पे Q की पोजीशन स्टेबल की है। Next, here I mention some advantage of class C power amplifier. The very first one is very high efficiency up to 95%। पूरे पावर एम्पलीफायर में यानी जितने भी पावर एम्पलीफायर के टाइप्स हमने प्रीवियस पढ़े हैं उसमें से सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी क्लास सी पावर एम्पलीफायर की होती है। पावर डिसिपेशन इज लो, इसमें क्लास सी पावर एम्पलीफायर में यहाँ पे लो बोलिए या फिर वेरी लो बोलिए, पावर डिसिपेशन सबसे कम होता है क्लास सी पावर एम्पलीफायर में, और ये अपने लिए एडवांटेज है। नेक्स्ट, द डिसएडवांटेज ऑफ क्लास सी पावर एम्पलीफायर इज आउटपुट वेवफॉर्म कैन बी डिस्टॉर्टेड। आउटपुट वेवफॉर्म जो होती है क्लास सी पावर एम्पलीफायर की वो होती है डिस्टॉर्टेड। एप्लीकेशन, the very first application is used for amplitude modulator circuit। क्लास सी पावर एम्पलीफायर हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर सर्किट में भी यूज कर सकते हैं, यानी जहाँ पे अपने को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का काम होता है। जैसे आपका जो सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन PEC, उसमें आप मॉड्यूलेशन पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जहाँ पे अपने को करना है वो जो सर्किट होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करने का, उसमें क्लास सी पावर एम्पलीफायर यूज होता है। सेकंड, यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। तो आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करोगे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का ही हिस्सा होता है कि अपन करने वाले हैं कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो उस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए हम यूज करते हैं क्लास सी पावर एम्पलीफायर। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास सी पावर एम्पलीफायर। So in next slide we will discuss about the comparison between all power amplifier। जैसे कि हमने क्लास A एम्पलीफायर पढ़ा, क्लास B एम्पलीफायर पढ़ा, क्लास AB एम्पलीफायर पढ़ा, और आज हमने क्लास C पावर एम्पलीफायर पढ़ा। इन सभी का कंपैरिजन हम आज नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो हियर I mention the comparison of all power amplifier। So here I consider the some parameter. So these are some parameter. Here the column for class A amplifier, here the column for class B amplifier, here class AB, and here the column for class C amplifier। So very first one
पैरामीटर दैट इज रिलेटेड टू द पोजीशन ऑफ क्यू पॉइंट। तो ये पैरामीटर के आधार पे आज हम इन चारों एम्पलीफायर को कंपेयर करेंगे। तो पोजीशन ऑफ क्यू पॉइंट मतलब क्यू पॉइंट की पोजीशन क्लास ए एम्पलीफायर में कहाँ पे होती है, तो वो होती है सेंटर ऑफ लोड लाइन पे, यानी लोड लाइन के सेंटर में होती है। क्लास बी में होती है ऑन एक्स एक्सिस, यानी पूरा कंप्लीट एक्स एक्सिस पे होती है पोजीशन क्यू की। क्लास ए बी एम्पलीफायर में होती है जस्ट अबव द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के थोड़ा ऊपर। और क्लास सी एम्पलीफायर में होती है बिलो द एक्स एक्सिस, जो अभी हमने देखा कि एक्स एक्सिस के नीचे होता है। सेकंड पैरामीटर इज इफिशियंसी। In class A amplifier, the efficiency is 25 to 50%. In class B amplifier, the efficiency is 78.5%. In class AB amplifier, the efficiency is above 78.5%, यानी 78.5% से ज़्यादा, मतलब क्लास B एम्पलीफायर से क्लास AB एम्पलीफायर में इफिशियंसी ज़्यादा होती है। एंड क्लास C एम्पलीफायर में अबव 95%, यानी आप 95% बोलिए या फिर उससे ज़्यादा इफिशियंसी होती है क्लास सी एम्पलीफायर में। वैसे ही हमारा तीसरा पैरामीटर है कंडक्शन एंगल। तो क्लास ए यहाँ पे कंडक्शन एंगल भी आप बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं कंडक्शन साइकिल। तो क्लास ए एम्पलीफायर में कंडक्शन साइकिल यानी कंडक्शन एंगल होता है 360 डिग्री। क्लास बी एम्पलीफायर में कंडक्शन एंगल होता है 180 डिग्री। क्लास ए बी एम्पलीफायर में कंडक्शन एंगल होता है ग्रेटर देन 180 डिग्री, यानी क्लास बी से थोड़ा ज़्यादा होता है क्लास ए बी एम्पलीफायर में। एंड क्लास सी एम्पलीफायर में जो अभी हमने देखा था प्रीवियस स्लाइड में कि लेस देन 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री से कम होता है कंडक्शन एंगल इन क्लास सी एम्पलीफायर में। वैसे ही हमारा लास्ट पैरामीटर है पावर डिसिपेशन। तो क्लास ए एम्पलीफायर में पावर डिसिपेशन वेरी हाई होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पावर वेस्ट होता है। क्लास बी एम्पलीफायर में पावर जो होता है पावर डिसिपेशन वो होता है लो। क्लास ए बी एम्पलीफायर में पावर डिसिपेशन होता है लो और क्लास सी एम्पलीफायर में होता है वेरी लो। सो these are some important parameter on the basis of that we are comparing all the power amplifier. So I hope आप सभी को ये आज का सेशन अच्छी तरीके से समझा हो और इसमें इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच me carefully and for watching this video very carefully. Thank you so much.